Assalamu alaikum students. Welcome to the course Network Security. Today we will be studying data link layer security. In this we have the security attacks and countermeasures. Before starting the lecture, let me recall what is data link layer. Data link layer जो है ये क्या है? The data link layer is the second layer, layer 2 of the OSI model. OSI तो सबको पता होगा, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल. ये दूसरा लेयर है. पहला लेयर जो है फिजिकल है, दूसरा लेयर डेटा लिंक लेयर है. Its main responsibilities include frame delivery, MAC addressing. MAC से बनता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. इसको फिज़िकल एड्रेसिंग भी कहते हैं. इसके अलावा और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है एरर डिटेक्शन. ये लेयर जो है ये डिवाइसेस के दरमियान में डायरेक्ट कम्युनिकेशन को मैनेज करता है. मतलब इसका ये है कि द डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन. यानी एक हॉप से लेकर दूसरे हॉप तक, एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसकी ज़िम्मेदारी डेटा लिंक लेयर की होती है. So why security at data link layer is important, and what are the attacks and countermeasures? We will be studying all these in the coming slides. So these are the contents of our today's lecture. First, we have the introduction. We will look into the data link layer fundamentals and security importance. Then the attack landscape. Here we will see the attack vectors and categories. After that, we have some different types of attacks like ARP spoofing, MAC flooding, DHCP attacks, VLAN hopping, and STP threats. Then we will look into the countermeasures, the security features and configurations, and at the end we will discuss the defense strategy. So let's start the foundation of network security. First, I have a question. Why security at data link layer is important? Most people focus on network or application layer security, but many attacks happen at data link layer also. For example, within LAN, local area network, inside offices और यूनिवर्सिटीज़. विद इन लैन जो कम्युनिकेशन होती है वो मैक एड्रेस की मदद से होती है. तो लैन के अंदर अगर अटैक्स होते हैं तो वो अटैक्स जो हैं वो डेटा लिंक लेयर की ही अटैक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द अटैक्स. सो अगर ये लेयर कंप्रोमाइज़ हो गया, यानी इस पर कोई अटैक हो गया, then the attacker can intercept data, redirect traffic, can perform man in the middle attacks. अगर ये लेयर कंप्रोमाइज़ हो जाए तो अटैकर नेटवर्क के अंदर कंट्रोल हासिल कर सकता है. तो कंट्रोल एक दफ़ा मिल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सारे उनके साथ ये कर सकता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. जो OSI है इसमें 7 लेयर्स होते हैं. तो डेटा लिंक लेयर जो है इट सिट्स बिटवीन द फिज़िकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर. फिज़िकल लेयर जो है हार्डवेयर केबल्स वगैरह इससे रिलेटेड होता है. नेटवर्क लेयर जो है इसमें IP एड्रेसिंग और राउटिंग होती है. सो इट्स बिटवीन द फिज़िकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर. सो जो लेयर 2 है ये करता क्या है? The layer 2 is responsible for node to node data transfer. एक नोड से दूसरे नोड को ये डेटा ट्रांसफ़र करता है.
फ्रेमिंग करता है। फ्रेमिंग का मतलब ये है कि ब्रेकिंग डेटा इनटू फ्रेम्स। मैक एड्रेसिंग करता है, फिज़िकल एड्रेसिंग करता है, एरर डिटेक्शन करता है और फ्लो कंट्रोल करता है लोकल नेटवर्क सेगमेंट्स में। ये लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र मैनेज करता है। The key protocols used in data link layer are Ethernet, most common LAN topology, then ARP, address resolution protocol. It maps the IP addresses to MAC addresses, यानी ये IP addresses के बदले में फिर MAC addresses की मैपिंग करता है। VLAN, virtual local area network, it divides the network into logical segments. सबनेटिंग हमने पढ़ा था। STP, spanning tree protocol, it prevents the network loops. And PPP, point to point protocol, it is used for direct communication between two nodes. Next is the trust problem. ये लेयर 2 जो है ये असल में बनाया गया था एक ट्रस्टेड एनवायरनमेंट के लिए, एक ऐसे एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया था जिसमें यानी सिक्योरिटी का इशू ना हो, या आप कह सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी के मुतालिक कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं थी। So the layer 2 were designed for trusted environment, but today's networks are not trusted anymore, as you know. So key issues क्या हैं? No built-in authentication. There isn't any proper authentication within this layer. मैक एड्रेसेस जो हैं ये स्पूफ हो सकते हैं। स्पूफ का मतलब ये है कि फेक मैक एड्रेसेस बन सकते हैं। मैक एड्रेसेस कैन बी स्पूफ्ड। इसके अलावा ARP इज़ स्टेटलेस, मींस देयर इज़ नो वेरिफिकेशन ऑफ ARP। ARP में हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। IP एड्रेस जो है उसके अगेंस्ट मैक एड्रेस की मैपिंग होती है, तो वो मैपिंग गलत भी हो सकती है, अटैकर कर सकता है। और इसके अलावा स्विचेस ट्रस्ट ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जितने कनेक्टेड डिवाइसेस हैं दे आर कंसिडर्ड एज ट्रस्टेड। So anyone connect to the network can pretend to be someone else. Spoofing इसमें हो सकती है डेटा लिंक में। तो नेटवर्क जो है ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करता है, जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। What are the main components? The first one is MAC addressing. It's a unique identifier for each device. 48 बिट का एक एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। तो जितने हमारे पास डिवाइसेस हैं दे हैव देयर ओन यूनिवर्सल नंबर, द यूनिवर्सल मैक एड्रेस। देन वी हैव द CAM tables. CAM stand for content addressable memory. It is used to switch stores the MAC addresses to forward frames. Then ARP protocol, address resolution protocol, ये IP to MAC resolution करता है, resolve IP to MAC addresses. Then VLAN segmentation, separate network into small segments. Last thing is the security insight. Layer 2 attacks are very dangerous because they can bypass higher layer security, like firewalls may not be detected. Like firewalls may not detect
them because firewalls they are installed at the higher level, so these can be bypassed. So what attackers can do? अटैकर्स बहुत कुछ कर सकते हैं। मैन इन द मिडल अटैक कर सकते हैं, ट्रैफिक इंटरसेप्शन कर सकते हैं, और इसके अलावा जो नेटवर्क रिलेटेड डेटा है दैट कैन आल्सो बी गैदर्ड। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि अगर लेयर टू जो डेटा लिंक लेयर है अगर ये कंप्रोमाइज़ हो गया, यानी इस पे अटैक हो गया, देन द एंटायर नेटवर्क सिक्योरिटी कैन बी इफ़ेक्टेड। ये एक फाउंडेशनल लेयर है, तो अगर ये कंप्रोमाइज़ हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ये रिस्क पे होगा और इसमें कुछ भी हो सकता है। So I have a question for this slide. Why do you think layer 2 attacks are harder to detect than higher layer attacks? लेयर 2 के जो अटैक्स हैं ये मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं बनिस्बत जो इससे ऊपर वाले लेयर्स हैं उनके। तो सवाल यही है कि ये क्यों हार्डर टू डिटेक्ट हैं, क्यों मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं। Now we will look at the common data link layer attacks and why they are so dangerous in real networks. So the first one is ARP attacks. ARP stands for Address Resolution Protocol. ARP is stateless, means does not verify responses. So attackers can spoof or can poison it. Spoofing means pretend to be another device. स्पूफ का मतलब ये है कि फ़ेक आइडेंटिटी हो। तो एक अटैकर जो है वो अपनी फ़ेक आइडेंटिटी बनाता है, वो ये ज़ाहिर करता है कि मैं एक लेजिटिमेट यूज़र हूँ या लेजिटिमेट नोड हूँ। पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग जो है सेंड फेक ARP एंट्रीज़। पॉइजनिंग में ये होता है कि ये फेक एंट्रीज़ सेंड करते हैं, अटैकर्स जो होते हैं ये फेक एंट्रीज सेंड करते हैं। तो उसकी वजह से जो ARP है वो पॉइजन हो जाता है, यानी उसमें एंट्री सारी गलत होती हैं। सो ड्यू टू दीज अटैक्स द ट्रैफिक गेट्स रीडायरेक्टेड टू अटैकर। अटैकर अपने आप को एक गेटवे बना लेता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि जो ट्रैफिक है वो अटैकर से होके गुज़रता है। वो अपनी एक फ़ेक आइडेंटिटी बना लेता है, तो बाकी नोड्स तो ये समझते हैं कि ये एक प्रॉपर रूट है, तो उससे ये अपना ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं या सेंड करते हैं, तो अटैकर से होके वो गुज़रता है। अगला है मैक अटैक्स, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। Switch uses CAM table to forward traffic. तो CAM टेबल में हमारे पास फ्लडिंग और स्पूफिंग हो सकते हैं। फ्लडिंग में क्या होता है, फिल CAM टेबल विथ फेक मैक एड्रेसेस, और स्पूफिंग जो है इसमें होता है यूज़ फेक मैक आइडेंटिटीज़। So in this way, the switch behaves like a hub that sends traffic everywhere. So attackers can capture all the data. Next is DHCP attacks. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP का काम ये होता है कि इट असाइंस IP एड्रेसेस ऑटोमेटिकली। आप अपना मोबाइल जब वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल को IP एड्रेस मिल जाता है उधर एक्सेस पॉइंट या वाईफाई राउटर से, तो ये ऑटोमेटिकली मिलता है। ये एक्चुअली DHCP सर्वर की वजह से मिलता है। वहाँ पे राउटर में DHCP होता है,
तो DHCP की वजह से आपको IP एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली मिलता है। DHCP का ये काम है। So the attacks include starvation and spoofing. Starvation means exhaust IP pool, and spoofing means create ROG DHCP server. स्पूपिंग में इस तरह होता है कि एक फेक सर्वर बनाया जाता है जो एक्चुअल सर्वर की तरह ही होता है, और यूज़र्स को ये पता नहीं चलता कि एक्चुअल है या फेक है। सिंपल मिसाल मैं आपको दे दूं तो राग एक्सेस पॉइंट की, यानी मेरे घर में एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, उसका नाम है ABC। तो अटैकर अगर एक एक्सेस पॉइंट मेरे घर के साथ ही लगा ले जिसका सिग्नल मेरे पास आता हो और उसका नाम भी ये ABC रखे, और मैं ABC के साथ कनेक्ट हो जाऊं, तो मोस्ट प्रॉबेबली शायद मैं अटैकर वाले एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाऊं और मुझे ये फ़ील होगा कि मैं अपने एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हूं। तो इसमें ये होता है कि द अटैकर्स कंट्रोल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इज़ VLAN attacks. Virtual LANs are used for network segmentation. नेटवर्क में जब हम पार्ट्स बनाते हैं, सबनेटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम VLANs बनाते हैं। सो अटैकर्स यूज़ VLAN hopping and double tagging. So in this way they bypass the network isolation. तो इसमें ये होता है कि अलग नेटवर्क के दरमियान अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाती है अटैकर्स को। नेक्स्ट इज़ STP अटैक्स, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अटैक्स। STP manages network topology. Attacks include BPDU manipulation and root bridge takeover. मीन्स DOS अटैक जो है वो हो सकता है ऐसे केस में। अच्छा, अब BPDU और ये जो रूट ब्रिज टेक ओवर है इसके बारे में देखते हैं। STP द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट लूप्स, यानी जो पैकेट्स हैं वो बार बार नोड्स से ना गुजरें। Also it decides the best path in the network, जो बेस्ट पाथ हो उसको चूज़ किया जाता है। So it selects one switch as the root bridge, that is the internal or main switch. So what does the BPDU manipulation mean? BPDU stands for Bridge Protocol Data Unit. These are special messages exchanged between switches used to decide network topology. When an attacker sends fake BPDU messages to the network, then the switches make wrong decisions. अटैकर्स जो हैं ये BPDU अपने बनाते हैं फेक और वो बेचते हैं, तो उसकी वजह से जो स्विचेस होते हैं नेटवर्क में उनकी डिसीजंस रॉन्ग हो जाती हैं और वो रॉन्ग रूट्स पे जाते हैं। अच्छा, इस अटैक में क्या होता है? द नेटवर्क टोपोलॉजी चेंजेस, द ट्रैफिक गेट्स रीडायरेक्टेड, अटैकर्स कैन पोजीशन देमसेल्व्स इन द पाथ। अटैकर्स फेक कंट्रोल मैसेजेस बेचकर नेटवर्क का फ्लो चेंज कर लेते हैं। तो नेटवर्क का जो फ़्लो है, यानी नेटवर्क के जो पैकेट्स गुजरते हैं वो इन अटैकर्स के ऊपर से गुजरते हैं, तो अटैकर्स जो हैं दरमियान में आ जाते हैं पाथ में, तो ये मैन इन द मिडल अटैक्स कर सकते हैं। तो इसमें फिर ये है कि पैसिव अटैक्स भी हो सकते हैं और एक्टिव अटैक्स दोनों हो सकते हैं। रूट ब्रिज टेक ओवर है, तो रूट ब्रिज टेक ओवर जो है द स्विच विद द लोएस्ट ब्रिज ID becomes root bridge. So what does the root bridge takeover mean? Attackers try to become the root bridge, send superior the fake better
BPDU messages and pretend to be the best switch. So as a result, the attacker becomes root bridge. All traffic flows through the attacker and the attacker takes full control over the network path. ये भी उसी तरह है, अटैकर जो है वो अपनी प्रायोरिटी बढ़ा लेता है तो उसके ऊपर से सारा ट्रैफिक फ्लो करता है। इसकी वजह से मैन इन द मिडल अटैक्स होते हैं। ट्रैफिक जो है उसको मॉनिटर किया जा सकता है जो कि पैसिव अटैक है, और डेटा को भी मॉडिफाई किया जा सकता है, दैट इज़ एक्टिव अटैक, एंड आल्सो इट कैन काज डिनाइल ऑफ सर्विस। Objectives: the first one is man in the middle, second is traffic interception, then denial of service, and the last one is reconnaissance. Man in the middle. Man in the middle intercept communication between two devices. दो devices के दरमियान में जो अटैकर है वो बैठा होता है और उसके ऊपर से ट्रैफिक जाता है। Then traffic interception, in this the attacker capture sensitive data, like they capture passwords, the sensitive session tokens, the credentials, or any sort of financial data. That is very important. Denial of service, it is used to disrupt the network connectivity. जो नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इस्तेमाल किया जाता है। फिर है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब है कि गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी दी एक्टिव डिवाइसेस। नेटवर्क के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रिकॉनेसेंस अटैक जो है ये यूज़ किया जाता है। नेटवर्क में कौन से नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं, कहाँ कहाँ कनेक्ट हैं, ये सारे इसमें आते हैं। देन वाई लेयर 2 मैटर्स। The first thing is foundation of trust. Higher layer security depends on layer 2. Second is silent attacks. Many attacks are invisible to endpoint security. डेटा लिंक लेयर पे जो अटैक्स होते हैं ये ऊपर की जो लेयर्स होते हैं उन पे ये इनविजिबल होते हैं, वहाँ पे ये डिटेक्ट नहीं होते। Lateral movement, once inside, the attacker can move across network. Like अगर लेयर 2 कंप्रोमाइज़ हो गया, लेयर 2 पे अटैक हो गया डेटा लिंक लेयर पे, तो फिर पूरे नेटवर्क जो है उसका एक्सेस मिल जाता है अटैकर को। द लास्ट वन इज़ ईजी टू एग्जीक्यूट। most attacks require low technical expertise. ये अटैक्स सिंपल टूल्स से भी किए जा सकते हैं, तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और हमें चाहिए कि हम डेटा लिंक लेयर जो है इसको प्रोटेक्ट करें इस किस्म के अटैक्स के अगेंस्ट। The layer 2 security is very critical for overall network security because the attacks on layer 2 are easy to perform, hard to detect, and highly impactful. Now here I have a question on this slide. Which layer 2 attacks do you think is the most dangerous and why? हमारे पास ये अटैक्स हैं, आपके ख्याल में इन अटैक्स में कौन सा अटैक है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? ये सारे अटैक्स लेयर 2 डेटा लिंक लेयर के अटैक्स हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ARP स्पूफिंग एंड पॉइजनिंग। दिस इज़ आल्सो नोन एज द साइलेंट इंटरसेप्टर। सो हाउ डज ARP वर्क? ARP stands for Address Resolution Protocol. It maps the IP address to MAC address. IP address के अगेंस्ट ये मैक एड्रेसेस देता है। प्रोसेस इसका इस तरह है कि डिवाइस सेंड्स ARP रिक्वेस्ट हु हैज़ दिस IP, द टारगेट डिवाइस रिप्लाइज विद इट्स मैक एड्रेस। So there is a critical vulnerability in ARP, that is ARP is stateless. It accepts replies without verification.
यानी अगर इसको कोई रिक्वेस्ट करे कि ये आईपी एड्रेस के अगेंस्ट मैक एड्रेस कौन सा है, तो ये उसको वेरीफाई नहीं करता, डायरेक्ट जवाब देता है. सो इट ट्रस्ट्स एनी रिस्पॉन्स. ये सिस्टम चेक नहीं करता कि ये जो रिप्लाई आ रहा है ये जेन्युइन है या फेक है. Now the attack mechanism, step by step. The first one is reconnaissance. The attacker identifies devices on the network. Reconnaissance में हमने यही पढ़ा था कि नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में अटैकर मालूम करता है. Then forged ARP replies. Attacker sends fake ARP responses. जब इसको नेटवर्क का पता हो तो उसके हिसाब से ये फेक ARP रिप्लाइज बना लेता है, रिस्पॉन्सेज बना लेता है और वो सेंड करना शुरू कर लेता है. An example can be like the attacker can say that I'm the gateway, I'm the victim. Then we have the cache poisoning. The victim updates their ARP table with wrong mapping. So victim A thinks attacker is a gateway and victim B thinks attacker is a host. जो कैशे है उसमें गलत एंट्रीज आ जाती हैं. Then traffic interception. All traffic now flows through the attacker. So the attacker becomes man in the middle. तो इसमें ये होता है कि दो डिवाइसेस हैं, लेट्स से वो आपस में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो दोनों डिवाइसेस का डेटा जो है वो अटैकर के थ्रू पास होना शुरू हो जाता है. जब अटैकर के थ्रू पास होता है तो डेफिनेटली अटैकर जो है उसको रीड भी कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है. अब सेंसिटिव डेटा हो तो अटैकर उसको स्टील कर सकता है या उसमें चेंजेस करके दोनों के दरमियान में रॉन्ग डेटा भी ट्रांसफ़र हो सकता है. ARP spoofing attack flow. In this diagram, victim A is connected with the attacker, and on the other end, victim B is also connected with the victim. And in fact, they are having a sort of data exchange between them. In between, there is attacker. The attacker is now man in the middle. So both victims think they are talking directly, but actually attacker is sitting in the middle and intercepting all the communication. There are many tools used for having such type of ARP spoofing. There are some common tools. The first one is Ettercap, can enable ARP spoof, BetterCap, and there are some other tools too. You can search for such type of tools on the internet. The impact of ARP attack: man in the middle. So it is used to intercept communication. Credential theft. It is used to capture the passwords, the important data, the sessions. Data interception, read or modify the traffic. And session hijacking, it is used to control the active sessions. So ARP spoofing is dangerous because it is silent, hard to detect, and works without authentication. It turns a normal network into a compromised environment. The question for this slide is, why is ARP considered insecure by design? MAC flooding and CAM table overflow. CAM table basics. CAM stands for Content Addressable Memory. Every switch maintains a CAM table which stores MAC addresses and MAC addresses along with the port mapping.
So how does it work? When a frame arrives, switch learns the source MAC and stores it in the came table. यानी जब कोई फ्रेम आ जाता है तो स्विच क्या करता है, जो सोर्स का मैक एड्रेस होता है उसको स्टोर कर लेता है. कहाँ पे स्टोर करता है? ये कैम टेबल में स्टोर करता है और इसी को फिर यूज़ किया जाता है नेक्स्ट टाइम या उसी वक्त जब पैकेट्स या ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना हो करेक्टली. So we can say when a frame arrives, the switch learns the source MAC, store it in the CAM table, and uses it to forward traffic correctly. It has some key limitations. The first one is CAM table has fixed size, that is around that is between 8K to 16K एंट्रीज, यानी 8000 से लेकर 16000 एंट्रीज तक इसका फिक्स साइज है. When full switch fails, it enters fail open mode. टेबल फुल होने पर स्विच नॉर्मल बिहेवियर लूज कर लेता है. अटैक एग्जीक्यूशन generate fake MACs. Attacker creates thousands of fake addresses. बहुत ज़्यादा मैक एड्रेसेस जो हैं ये जनरेट कर लेते हैं अटैकर्स. क्यों करते हैं? क्योंकि कैम जो है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा करना होता है इन्होंने. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? फ्लड द स्विच, सेंड रैपिड ट्रैफिक विद दीज मैक्स, देन टेबल ओवरफ्लो, CAM table becomes full and legitimate entries are removed. And last one is the hub mode behavior. Switch can no longer decide where to send the traffic, so it sends data to all ports like hub. hub में हम कहते हैं कि हब के पास जब कोई पैकेट आता है तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, यानी उसके साथ जितने पोर्ट्स कनेक्ट हैं सबको डेटा वो सेंड करता है. तो यहाँ पे क्या सिचुएशन होती है? अटैकर जो है फेक मैक एड्रेसेस बना लेता है और वो स्विच को भेजना शुरू कर लेता है. तो स्विच जो है उसके पास कोई अथेंटिकेशन का मैकेनिज़्म तो है नहीं, तो वो उन मैक एड्रेसेस को स्टोर करना शुरू कर लेता है कैम में. कैम जो है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी जब कंप्लीट हो जाती है तो कैम में जो ओरिजिनल जो लेजिटिमेट एड्रेसेस हैं, जो टिक एड्रेसेस हैं, वो भी ओवरराइट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. उसके बाद फिर जो स्विच है उसको पता नहीं चलता कि इसने कहाँ पे डेटा सेंड करना है और कहाँ पे नहीं करना, तो वो हब बोर्ड में चला जाता है और ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर लेता है. तो स्विच की जो अपनी फंक्शनैलिटी है वो ख़त्म हो जाती है. सो द अटैक इम्पैक्ट, द स्विच सिक्योरिटी लॉस्ट, switch behaves like an unsecured hub, then traffic visibility, attackers can see all network traffic, then the data capture, sensitive data is exposed to the attacker like password, sessions, credential data. The important state is that CAM size is 8000 to 16000 entries and attack time may take less than 1 second, meaning the attack is very fast and dangerous in this case. Well-known tools used for the MAC flooding and CAM table overflow are MACOF, this is also known DSNIF, Yersinia, then Wireshark. Wireshark is very famous sniffer, and Wireshark can be used on other layers of network also. For detection, we must monitor the CAM table usage, we must check the traffic pattern, and also if there is a high spike or something that is unusual, then there might be some suspicious within the data link layer. Okay students, now we are moving towards the another attack, that is DHCP attack, the starvation and spoofing.
So the first one is starvation attack. Starvation attack, let me tell you, DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It automatically assigns IP address, gateway, and DNS to the systems. So, what happens in the starvation? The attacker floods DHCP server with the thousands of discover requests using fake MAC addresses. The IP address pool becomes empty. So, in this way, the legitimate users cannot get IP and lose the network access. इसमें ये होता है कि जब कोई सिस्टम सर्वर के साथ कनेक्ट होता है फर्स्ट टाइम, तो सर्वर उसको एक आईपी एड्रेस दे देता है। जैसे हम अपने मोबाइल को वाईफाई एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं या अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन को आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो अटैकर क्या कर लेता है, इस तरह के जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट्स हैं, ये फेक रिक्वेस्ट्स भेज देता है सर्वर को। तो सर्वर जो है उसके पास तो एक लिमिटेड नंबर होता है आईपी एड्रेसेस का, तो वो लिमिटेड नंबर या जो वो पूल है वो ख़त्म हो जाता है वो फेक रिक्वेस्ट्स की वजह से। उसके बाद फिर जब लेजिटिमेट यूज़र्स होते हैं, जो एक्चुअल यूज़र्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं या टीक यूज़र्स होते हैं, वो जब रिक्वेस्ट करते हैं DHCP सर्वर को कि हमें आईपी एड्रेस दी जाए, हमें कनेक्ट किया जाए, तो DHCP सर्वर जो है उसके पास आईपी एड्रेस नहीं होता उनको देने के लिए, क्योंकि जितने आईपी होते हैं वो सारे अटैकर्स की वजह से, फेक डिस्कवरी रिक्वेस्ट की वजह से इस्तेमाल में आ चुके होते हैं। सो दिस इज़ नोन एज स्टारवेशन। नेक्स्ट इज़ DHCP स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब है फेक। सो वी कैन आल्सो हैव a fake DHCP server. This is known as ROG DHCP server. So what happens in this case? The users, they think that they are connected with the true DHCP server, but in fact they get a sort of connection with the ROG DHCP server. This fake DHCP server responds faster than the real DHCP server. It sends malicious configuration such as fake gateway एंड फेक DNS सर्वर। ये फेक गेटवे जब बेचता है तो इसमें ये होता है कि जो पाथ होता है वहाँ पे ये अटैकर से ट्रैफिक को गुजारता है। The tools used for DHCP spoofing are Metasploit DHCP module and DNS mask. There are some other tools also available. By using those tools, the attackers can have DHCP spoofing. So the major impacts of these attacks are MITM, man in the middle, traffic redirection, and phishing. Now let's look at the attack sequence. The first phase is starvation phase. Attacker floods DHCP server with thousands of discover packets using random MAC addresses. क्या करता है जो अटैकर है वो डिस्कवर पैकेट सेंड करता है और उसमें जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो फेक होते हैं सारे, यानी अब मैक एड्रेसेस बेचता है डिस्कवर पैकेट में। तो जो सर्वर होता है वो डेफिनेटली इनको अवेलेबल आईपी एड्रेसेस एलोकेट करेगा। तो आईपी एड्रेसेस जब एलोकेट होंगे तो डेफिनेटली सर्वर के पास एक पूल होता है, एक लिमिट होता है आईपी एड्रेसेस का, तो वो लिमिट जो है पूरा हो जाता है। दैट इज़ पूल एग्जॉस्शन। So all available IP addresses allocated to fake MACs, legitimate requests are ignored. तो सिंपल एग्ज़ाम्पल इसकी यही है कि अब अगर देखें तो हमारे पास 192.168.1.x, अब अपने घर के एक्सेस पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ से इसका रेंज स्टार्ट हो जाता है। तो ये यानी जाता है 1 से लेकर लेट्स से मैं कहूँ मैक्सिमम जो है वो तो 255 है, तो ये चला जाएगा 254 तक। तो ये एक पूल है
इतने यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं आपके घर में जो एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है उसके साथ। तो इस तरह की हर सर्वर में एक पूल होता है, सो दैट गेट्स एग्जॉस्टेड। सो वंस द पूल इज एग्जॉस्टेड देन द legitimate requests are ignored. So if there is any legitimate user, then for that user there will be no available IP. Then the rogue server activation. The attacker's DHCP server begins responding with malicious gateway or DNS configuration. So this is the third step. अब इस थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक rogue सर्वर एक्टिवेट किया जाता है। फेक सर्वर, जो लेजिटिमेट यूज़र होता है, वो जब इस फेक सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाए तो लेजिटिमेट यूज़र को ऐसे फील होता है कि वो एक्चुअल सर्वर के साथ कनेक्ट है, लेकिन वो रॉग सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है। रॉग सर्वर जो है उसको एक आईपी एड्रेस दे देता है, तो लेजिटिमेट यूज़र जो है वो फेक सर्वर के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर लेता है। तो ये फेक सर्वर जो है ये अटैकर के कंट्रोल में होता है। और लास्ट स्टेप जो है दैट इज़ द मैन इन द मिडल target, that is achieved. All client traffic routed through attacker, so full interception capability is attained by the attacker. Okay, at the end of this slide I have a question. Why is DHCP considered as a weak protocol from a security perspective? DHCP प्रोटोकॉल जो है इसको वीक प्रोटोकॉल क्यों कंसिडर किया जाता है अगर हम सिक्योरिटी की बात करें? Students, we reached at the end of part 1 of this lecture. In this lecture we studied about the uh, foundation of network security in respect of the data link layer, why it is important and what kind of components are there at layer 2. Then we discussed the basic attacks on layer 2 briefly. Next topic was ARP spoofing and poisoning, then MAC flooding and CAM table overflow, DHCP attacks, like we have starvation and spoofing attacks. In the next lecture, we will resume with VLAN hopping, like how can the attackers bypass network segmentation. And the last attack in this lecture is STP attacks and spoofing threats. So this will also be discussed in the coming lecture, that is part 2 of this lecture. After that, we will study about the countermeasures, like how can we defend against these attacks at layer 2. And also with these countermeasures we will have a look at the defense in depth, the integrated security architecture. So for now the part 1 is over. Thank you for watching the lecture and see you in the second part of this lecture. Allah Hafiz.